So this is a basic data structures and algorithm course. So we see it as a beginner course because we are more focusing on the your foundation of data structure and algorithm, so that you can start solving the problems, complex problems. We start from the easy problems and we'll keep on going with the moderate and tough problem. Okay, so that after a certain time you will be able to solve the complex problem, and so you have the more grasp and more control how to understand the problem, how to approach the problem, and how to give the optimum solution to given problem. Okay, so this course name is Coding Geeks. Okay. This is a foundation program, foundation course. Okay, and this should be of 32 hours, and it would be 3 months, and this is a weekend program. Okay, so what we are going to cover here, so we are going to cover here, we are going to cover all the data structures. Okay, like your arrays, then your multidimensional arrays that we call matrices, then we have strings, and then we have your stack and queue, then we will have your linked list, your binary tree, your BST, binary search tree, then we have heap, then we have hash. Okay, then the important recursion. Because Okay, and the algorithms we are going to cover, your iterative algorithms, your recursive, your sorting algorithms, your searching algorithms, your we will say greedy algorithm. Okay, dynamic programming. dynamic programming we will say, and option this kind of introduction to dynamic programming. Okay, and then we have your you can say top down approach, then you have bottom up approach. Okay, and we'll have your divide and conquer. So they are different kind of algorithms, so we will try to cover maximum of the algorithms. Okay, so because we have the Okay. time limitation, so we cannot cover each and everything because it's a huge thing. Okay, so we'll try to cover the maximum of the things. Okay, so the how the course is structured, so the course is Okay. structured in such a way that we will not start or will not going to finish the course in an academic way. Let's say we will start with the array, so that will be the flow, that will start with the array data structure and we'll go with the hash and heap and everything. We are going to cover each and everything, but it is not the academic way that I will not be going into the theoretical part of the array. Okay, we will start with the problems, what kind of problems are being in the interviews, how you are going to approach the problem. Okay, how to you are going to give the solution of the problem, what is the different techniques and the tools that you can give the right solution, where your time complexity or space complexity is the minimum at least it is required. Okay, so I assume that you have the basic understanding of the arrays or the string or the queues or the linked list or binary tree or BST or heap. Whenever it is required, I will give you the extra input. Okay, but I will not give you the programming details. So because this course is for the DSA, data structure algorithm, this is not course for the programming. This course is not for Java or C++ or C. Okay, so I will not go into the syntax, how the function are designed, how the different syntaxes, how the parameters are being passed. So this is not being concept of this program. Okay. Okay, so you are comfortable with that? Okay, so we'll not go into the Yes, sir. syntaxes. Okay, because this is a DSA program. So now we'll go, okay, what actually we are going to cover in this course. Okay, so when you are working,
But it's not going down. Okay, it is going down, but it's not going up. Why it's happening? No problem, we'll take a new image. Again on the same page, you have the same thing. Okay. Going up. Okay, I am doing something that is not going up. It is not going up. Okay, no problem. Okay, there is some problem. Let me. Why it has become the fix? So what we are going to cover here? So whenever you are going for any interview, okay, when you are going for any interview, so there are few 3 or 4 that very important steps when you are going for any coding interview. Okay, first, or when you are going to solve any problem, first you need to understand the problem. Understand problem, because if you are not understanding the problem, then you are not going to give the right solution. So it may be that whenever he or she is asking you any problem, okay, you are not able to understand this completely. So it is never, okay, a bad way, so that you are asking a question. You can always ask a question if there is a confusion, any question. Okay, you have any doubt, ask a question if you are not able to understand any part of the question. So always try to understand the problem first. Second, give a solution. Give a solution. Okay, it may be a brute force solution. Try to give a brute force solution first. Okay, and don't worry about, let's say at the first time you are not able to give the optimum solution. Let's say you are giving the brute force solution, and let's say your time complexity or the space complexity both are on the higher side. Don't worry, but at least you have given a solution that is actually working solution. But yes, that is not the optimized solution. The third way, he will ask, your interval asks to optimize your solution. So your third point is to optimize your solution. Okay, when the third party is coming to optimize your solution, then you actually look for the efficient solution for your problem, because you have already given a solution, but that is a correct solution, but that is in terms of time complexity, the space complexity is maybe on the higher side. So we'll try to decrease time complexity or space complexity. Okay, let's say you have given an optimized solution. So he or your interview will ask you whether your solution is correct, because your solution might be looking at a correct, okay, it looking that it is a correct solution, but really it is a correct solution, let's say. So whether it is a right solution. Right solution means that it may look like that it is a working solution, but is it working all the corner test cases? So it may happen that your solution is working for the some test cases or the first specific kind of input, but whenever I am giving the extreme inputs, or let's say corner cases input, then it is getting failed. So you have to debug your own code whether it is working for all kind of input. Is there some specific condition where it is getting failed? So you have to test your solution for the correctness. So you might have to debug your own code, or you have to dry run your code. Let's say if you are not able to find out what is the problem with your solution, so he will try to give you an input. Okay, he will try to give you a sample input whether your solution is actually getting failed, and he will ask you to make the dry run for this sample input. In that case your code may fail.
Okay, in that case, he will try to debug your own code. Okay, your code is failing for this specific input. Can you debug on your own code? Where is the problem? If you are able to identify the bug in your code, then you are going to optimize your solution again, you correct your solution again. So these are the 1, 2, 3, and 4 steps that may you have to encounter with each and every interview, whether it's a service-based company or the product-based companies or any other companies. The first interview, second interview, fourth interview. So these are the 4 steps. So you have to give the solution in such a way that it may not look like that you have the solution, you have mug up the solutions. Okay, you have to take the right approach. First, you get the normal solution, then you optimize your solution, then you are going to cover all corner cases, you debug on code. If it is required, then you will try on your code. So this is the basic structure of any interview. इसमें कोई confusion है आपको? No, sir. Okay. So now this, let's say, now we'll take one simple problem, okay, and we'll try to apply these all the 4 things here. Okay. If any problem is being asked in the interviews, then how your interview will be run for a simple problem. Let's say there is a simple problem. Let's say an array is given to me. Seven, 9, 11, 0, 1, 5, 3. So this is an integer array given to me. Okay. And let's say I need to find out the max element in it. This is a very simple problem, very, very simple problem. Okay. So how can I find it? Your question is that find the maximum element in this array. Your size is given, let's say this is sample size, let's size is given n. How can you find out the max element in this particular array? So have you understood the problem, Rahul? Sir, loop chala ke. Yes, sir. Okay, so you have understood the problem. Now give me this first. Loop chala ke Is done. sabse basic wala. Okay, so first loop, second, you are giving me a solution. What is your solution? So we can run a for loop and check each and every element and which is the maximum, and we can mark that element as maximum. If we move forward and find something that is greater than the max value, then we can update the max value. Right. So this is a solution, very simple solution. We will take a max until variable. The end of array. Okay, we'll take a max variable. Okay, and we will keep on traversing this integer array. Okay, so what would be my maximum initial value for the max? What should be my initial value for the max? So I is equal to 0 to start. Max initial 0 रख लेते हैं. Initial, let's say, if it is an integer array, let's say all are minimum elements. या फिर first value. Okay, then in that case, your program is going to get failed, right? Because I cannot take the 0 as initial value. So my corner case is at this corner case, my code will get failed. So what would a max value? Yes, sir. What it should be? So first element. First element. You want the max element Yes, as a sir. first element. Okay, so I can have, let's say, my array, I would call this is A. Okay, so I will take max as a A 0, right? Right. Yes, sir. What I'm going to do, I am going to traverse this complete array. Okay, and I will going to compare each and every element with the max. Okay, if any element that is Yes, sir. find to be greater than max, and I am going to update the maximum value, right? Okay, so and when I am going to finish this array, I will have the max value, right? This is simple code. Yes, sir. So this is let's say for I0, I less than n, and I plus plus, right? Yes, sir. If AI A of I is greater than max, then what I'm going to do? Max equal A to of I is equal to max.
A of I. Okay, right? Yes, So this is simple code. This is going to work, right? या राहुल ये इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है आपको इस कोड में? yes, sir. This is right code because we are going starting from 0, and this is the terminating condition, and this is how we are going to traverse my array with a single element one at a time. Okay, my max initial value for the max is my 0th element. Okay, and I am going to compare every time each and every element with the max. If it is greater than the max, I am going to update the max value. Okay, so this is my simple code. Okay, now this code is working for all the conditions. We have checked one condition because let's say if my all elements are negative, -2, -3, -5, -7, and let's say -11. In that case, my this code is going to work. Yes, sir. This code is going to work. This is one of the test cases passed. If I am having all the positive, it is going to work, right? Let's see if I am having all the same kind of data, 7, 7, 7, 7, and 7. It is going to work, right? It is going to work because this is 7. I have already taken the max as 7. Yes. So it is First going to work element. in most Yes, of the sir. test cases. Okay. So I'm not finding any test case where it is getting failed. Okay. Negative test case I am linked. So let's say when you have given the solution of a one problem, it will give you the second problem, which is of the similar kind. How can I find out the second max? In this problem, what is my second max? Yes, sir. So you can sort in this case. What is my second max? This is my max, and this is my second max. Second max. Okay. So how can I find the second max? Sort करके मतलब second last element हम print करवा सकते हैं. Okay. So this is right. Now you have understood the problem and you are giving me the solution that we can, what we can do, we can sort the array. Okay, you are saying that sort the array. Okay, and second last element is my second max, right? This is your solution. So this is a working solution. ऐसा नहीं कि solution काम नहीं करेगा, आप इसको sort कर लोगे. You have sorted the array and the last, ये जो आपका element रहा, second last element, this is your second max, right? Yes, sir. This is a workable solution. Now the interviewer will ask you, let's say I'm your interviewer, I will ask you, can you optimize your solution? Because the thing is that when you are sorting this array, first thing what you are doing, you are actually disturbing the arrangement of the array. Okay, you are disturbing the arrangement of the array. That I don't want, first thing. Okay, because let's say any data is, let's say you are working on a project and the data is coming to you from the different entity, okay, or the different, okay, different code. So they don't want to change this code. You have to just find out the second max from this element and you have to use it. If you are going to change this particular array, then it is harmful for the entire project because you are not supposed to change the data. And here you are just disturbing the arrangement. So what you can do, you can have what the options do you have? You can have the secondary, you can take the temporary array, right? आप एक टेम्परी अरे ले सकते हैं. उस टेम्परी अरे में क्या करेंगे, इसको कॉपी कर देंगे. Yes, sir. ओके, फिर आप इसको क्या करोगे, फिर आप इसको सॉर्ट करोगे और सॉर्ट करने का फिर आप सेकंड मैक्स निकालोगे, राइट? ये कोड आपका काम करेगा. लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें ये है कि आपने एक एक्स्ट्रा मेमोरी आपने यूज कर ली. फर्स्ट थिंग, दिस इज योर एक्स्ट्रा मेमोरी यू आर यूजिंग. एक्स्ट्रा मेमोरी. तो एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करते क्या हो गया, आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी इंक्रीज हो गई. Yes. ओके,
अब हम जाते हैं सॉर्ट। आपने उसको सॉल्यूशन को सॉर्ट किया, तो जब भी आप किसी भी एरे को सॉर्ट करते हैं तो अगर आप उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है? अगर मैं इसको लेट से क्विक सॉर्ट करता हूँ, ठीक है, क्विक सॉर्ट आपका सबसे मोर लेस आपका सबसे फास्ट काम करती है, तो किस में काम करेगी? ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन में, राइट? तो log n. आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपने बढ़ा दी है, और आपकी जो सॉर्टिंग है वो आपने ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन में कर दी है। ओके, उसके बाद आपको सेकंड मैक्स मिल रहा है। अब आपसे इंटरव्यू पूछेगा कि आपने ये सब चीजें कर ली हैं, कैन आई हैव ए solution which have the lesser time complexity, okay, and can have the lesser time complex space complexity on the lesser side and the time complexity on the lesser side. Can I do it on same array? I am not going to use another array, first thing, okay, no extra memory, okay, and can I decrease the space time complexity? How can I do it? Can I do it on order of n or lesser than order of n log n? Anyway, now you are, it is not uh, that you have given the wrong solution, you have given the right solution, but your space complexity and time complexity is on the higher side. We need to improve it. How we can do it? Now this is your third point where actually you have understood the problem, you have given the solution. Now we are at the third point, optimizing solution. So how we can do it, Rahul? How can you optimize? प्रॉब्लम समझ आ गई राहुल आपको कि इस सॉल्यूशन के साथ हमारी प्रॉब्लम क्या है? Yes, sir. Solution is correct, but your space So and time. maybe half, मतलब डिवाइड एंड कॉन्कर यूज कर सकते हैं कि मिडिल एलिमेंट से आगे और मिडिल एलिमेंट लेफ्ट हाफ और राइट हाफ में चेक करवाएं. ओके, आप कह रहे हो कि हम उसको अपने एरे को बट फिर ब्रेक वही कर है, दें पहले दो सॉर्ट पार्ट्स में, करना हाफ पड़ एंड जाएगा. हाफ, और उसके बीच में वो तो फिर हमारी वही बात हो गई, क्योंकि हमको तो ढूंढना तो है ही ना पहले, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. हमारी प्रॉब्लम ये कि हम सेकंड मैक्स से फाइंड आउट करेंगे. अभी आप कह रहे हो कि एरे को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज परफेक्टली फाइन, बट एक्चुअली आई एम नॉट सर्चिंग एनीथिंग, आई हैव टू फाइंड आउट समवेयर. इसको ब्रेक करूंगा तभी मुझे फाइंड आउट तो करना ही है. यस सर. So we can do one thing. Okay, so this is just a demo class. Okay, so we are not starting from the array, from the basics. When we'll start with the actual classes, then we'll start from the simplest problems first. We'll try to understand the array, how does it work, and we'll start one by one with all the problems. Okay, so we can do one thing. ओके सर. अभी हमने क्या किया, हमने एक एलिमेंट लिया था मैक्स, वेरिएबल लिया था. विल टेक वन मोर वेरिएबल, दैट इज सेकंड मैक्स. ओके, अभी स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, मैक्स इक्वल टू सेकंड मैक्स. ओके, एंड लेट्स से इट इज बोथ आर इक्वल टू a0. We can do that, right? यस सर. अभी कुछ हिंट मिला आपको कि ये मैक्स, अभी वो आपको हिंट देना स्टार्ट कर रहा है. इंटरव्यूअर हैज स्टार्टेड गिविंग यू द हिंट. उसने हिंट दिया कि आप क्या हम सेकंड मैक्स एक और वेरिएबल ले लें तो क्या हमारा काम हो जाएगा? चलो हो उसी, सकता है सर. हो सकता है. सो एनीथिंग कमिंग अप योर माइंड, एनीथिंग Maybe. कमिंग? Not sure. ओके, लेट्स ट्राई. हम उसी लूप को फिर से रन करते हैं. फॉर I equal to 0, I less than n, I plus plus, right? ओके, अभी हमने क्या किया था, इफ ai, a is my array, if ai is greater than what, max. सो मैं इसको कहां पर डाल रहा था, max is equal to
AI. AI। एक सेकंड लगाते हैं एल्स इफ, ये अगर वो एलिमेंट मैक्स एलिमेंट अगर AI से बड़ा है तो मैक्स में चला जाएगा। अगर वो एलिमेंट मेरा AI से छोटा है, हम उसको पहले मैक्स से कंपेयर करेंगे, वो मैक्स में चला गया। लेट्स कंपेयर टू द सेकंड मैक्स। ओके, ये हमने सिर्फ ये लगाया, ओके, कि अगर एलिमेंट्स मेरा मैक्स से बड़ा है तो मेरा मैक्स में चला गया। एल्स इफ AI is greater than second max. ओके, अभी क्या होगा? अगर एस मैक्स से ही बड़ा हो जाएगा तो वही मैक्स हो जाएगा। अगर मेरा सेकंड मैक्स से मेरा बड़ा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? मेरा सेकंड मैक्स में क्या AI चला जाएगा, क्या जाएगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर? अगर AI एस मैक्स से बड़ा है तो ऑब्वियसली वो मैक्स ही हुआ ना। मुझे दो एलिमेंट फाइंड आउट करना है, मैक्स और सेकंड मैक्स। अगर मैं पहले मैंने कंडीशन लगा दी, पहले सबसे पहले इस वाले ब्लॉक में जाएगा कि मैक्स, अगर आप AI मैक्स बढ़ तो मैक्स में चला गया ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन मैक्स से बड़ा नहीं है, क्योंकि मेरे दो कंडीशन हो सकती है। मेरे को लेट्स मेरे पास दो, मेरा सेकंड मैक्स अभी 7 है, सेकंड है, और लेट्स मैक्स मेरा 10 है। अभी मेरा एलिमेंट लेट्स से मेरा 8 आ गया, तो पहले वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि मैक्स इससे बड़ा नहीं है। बट सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड कि सेकंड मैक्स से बड़ा है, यस सर। तो ये मेरा कहाँ चला जाना चाहिए? सेकंड मैक्स में, राइट? सेकंड मैक्स में। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ये क्या करेगा यहाँ पर? तो एस मैक्स इक्वल टू AI। एस मैक्स इज इक्वल टू AI। एक्स मैक्स मैंने AI डाल दिया, ये इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा, ठीक है, ये हमने कर दिया। ओके, क्या इसमें अभी एक प्रॉब्लम अभी और भी है। लेट्स से कि मैंने 8 को मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसके अंदर अभी 8 आ गया। ओके, यहाँ तक तो ठीक है, मैक्स बिल्कुल ठीक था, इसके अंदर 10 वैल्यू थी। ओके, लेकिन लेट्स से मेरा केस में मेरे पास 12 नंबर आया, लेट्स से 12 नया नंबर। ओके, 12 को मैंने यहाँ पे डाल दिया, मैक्स के अंदर चला गया, फर्स्ट फॉर लूप में गया, फर्स्ट इफ में, और 12 यहाँ पर आ गया। लेकिन ये 10 नंबर कहाँ जाना था मेरा? ये 10 मेरा कहाँ जाएगा? एस मैक्स में। सेकंड मैक्स में। तो यहाँ पर मुझे क्या चेंज करना चाहिए? पहले इफ दिस इज ग्रेटर देन मैक्स, एस मैक्स इक्वल टू मैक्स। जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट। तो ये समझ में आया हमने ये क्यों किया? सेकंड मैक्स इक्वल टू मैक्स एंड मैक्स इक्वल टू AI। ये समझ में आया कोड आपको? यस सर। तो हमने क्या किया? दो चीजें की। इफ जैसे ही अगर आपका ये आएगा, सेकंड मैक्स को पहले मैक्स में डालोगे, फिर मैक्स के अंदर आप AI डालोगे। उसके बाद वो मैक्स से बड़ा ना हो गया, क्योंकि सेकंड मैक्स से बड़ा है, तो किसके अंदर जाएगा? इसके अंदर जाएगा। अभी ये कोड काम करेगा आपका। लेट्स से आपने सॉल्यूशन उसको दे दिया, क्या कंप्लीट सॉल्यूशन है? इट इज ए वर्किंग कोड, टेस्ट करना पड़ेगा। राइट? टेस्ट करो आप इसको। कैन यू फाइंड आउट एनी एरर इन इट? जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट एनी एरर। क्या इसमें कोई एरर है? ये वर्किंग कोड है। देखता हूँ। या किसी टेस्ट केस के लिए फेल हो रहा है? Let's say an example, let's say 2 3 let's 10 9 5 let's say 8. Okay, starting where my max or set max is equal to 2, right? Max and second max both are equal to 2. Okay, for example, अभी फर्स्ट एलिमेंट आएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स, नो, तो दोनों आपके मैक्स और सेट मैक्स आपके दोनों सेम है। देन इट इज कमिंग 3, सेकंड एलिमेंट। तो क्या करेगा? सेकंड मैक्स को मैक्स में डाल देगा, ऑलरेडी 2 को 2 में डाल देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और 3 के अंदर क्या डाल देगा? आपको मैक्स आ जाएगा। नाउ मैक्स इज 3 एंड सेकंड मैक्स इज
2. तो Okay, right? Then your 10 is coming. 10 में फिर क्या करेगा ये आपका मैक्स के अंदर 10 आ जाएगा और सेकंड मैक्स में क्या डाल देगा आपका 3. देन योर 9 इज कमिंग. 9 के लिए क्या करेगा फर्स्ट लूप में नहीं जाएगा सेकंड में जाएगा तो ये 10 हो जाएगा ये आपका 9 हो जाएगा. देन योर 5 इज कमिंग देन योर 8 इज कमिंग नथिंग इज गोइंग टू हैपन. तो इसके लिए तो मेरा काम कर रहा है. कोई ऐसा टेस्ट केस है जहां ये फेल हो जाएगा. लेट्स से मेरे पास है लेट्स से 2 3 2 2 3 or let's say I will say 3 2 and 2. 3 2 2 केस में क्या करेगा ये तो पहले मैक्स 3 होगा, फिर मैक्स और मीन आपके दोनों 3 हैं. सेकंड मैक्स 2 होना चाहिए. 3 और 3 है स्टार्टिंग में. देन 2 इज कमिंग. 2 के लिए इस लूप में जाएगा तो इसको ये क्या कर देगा 2 कर देगा. फिर अगेन 2 कोई प्रॉब्लम नहीं होगा 3 और 2 रह जाएगा. ओके कोई ऐसा टेस्ट केस आपको लगेगा जहां फेल होना होगा ही वेयर इट इज गोइंग टू गेटिंग फेल्ड इट विल बी फेलिंग. लेट्स से 2 2 2 तो मैक्स ही वही है, एस मैक्स ही वही है. दोनों आपके सेम है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके. और आपका ऑलवेज इट इज 2 2 2 2 कोई प्रॉब्लम नहीं कोड चलेगा आपका राइट. या फेल हो जाएगा कोड चलेगा कोड फेल होगा क्योंकि इसमें लेस देन इक्वल टू नहीं है ना. तो जो हमारी कंडीशन है कि इफ a of i is greater than सो लेट्स से मेरा मैक्स और सेकंड मैक्स मेरे 2 2 हो गए दोनों राइट. दोनों मेरे 2 हैं स्टार्टिंग में 2 and 2. फर्स्ट लूप इसके अंदर भी नहीं जाएगा इसके अंदर भी नहीं जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है. फिर नेक्स्ट आएगा फिर भी इसके अंदर जाएगा आपका मैक्स वो है आपका 2 और 2 दोनों आपके मैक्स और सेकंड मैक्स दोनों आपके 2 और 2 है. ओके व्हाट शुड हैपन हियर आपका मैक्स और सुपर मैक्स सेकंड मैक्स आपके दोनों 2 ही हैं. क्योंकि आपके पास बेसिकली एक ही सिंगल तरह का एलिमेंट आपका मैक्स वही है सेकंड मैक्स वही है राइट. देयर इज नो इशू कोई है ही नहीं. या हम इसके लिए और थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं क्योंकि इसमें सेकंड मैक्स है ही नहीं. वी डोंट हैव द सेकंड मैक्स. सो व्हाट वी कैन डू हियर बिकॉज़ वी डोंट हैव द सेकंड मैक्स हियर वी हैव ओनली मैक्सिमम. मैक्स इज इक्वल टू एस मैक्स मतलब इन सब लूप्स के बाहर. तो फिर सर एस मैक्स निकालने की जरूरत ही नहीं है अगर इस ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें सारे एलिमेंट सेम है. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं हम ऐसा कर सकते हैं मैक्स को a0 कर दें जैसे हमने पहले किया था और सेकंड मैक्स को हम डाल देते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि अभी उसमें लेट्स से इन द वर्स्ट केस इस सिचुएशन में या तो उसमें केवल एरे में एक ही सिंगल एलिमेंट है ठीक है. ओके ओनली सिंगल एलिमेंट इज देयर ओके. या उसमें एक ही तरह के सारे एलिमेंट है दिस वन. उस केस में लेट्स हम सेकंड मैक्स को क्या करते हैं इंटीजर मिनिमम मिन वैल्यू है राइट समथिंग. ओके इस कॉर्नर केसेस को हम कैसे कवर करेंगे. लेट्स से मेरे पास इनपुट सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है तो व्हाट यू कैन चेक उसमें आपका सेकंड मैक्स और मैक्स दोनों अगर मैं इसी को लेके चलता हूं मैक्स और सेकंड मैक्स ओके उस केस में वो क्या करेगा इट विल ट्राई टू फाइंड आउट इस कोड के अंदर जाएगा ओके कोड के अंदर वो देखेगा सेकंड उसको कभी भी उसको सेकंड मैक्स नहीं मिलेगा इस केस में भी नहीं मिलेगा उस केस में भी नहीं मिलेगा ओके. योर सेकंड मैक्स इज ऑलवेज इंटीजर मिनिमम रहेगा ओके. सो विल रिटर्न कि आपका मैक्स तो उसमें है लेकिन सेकंड आपका सेकंड मैक्स उसमें है ही नहीं ओके. ईदर इट इज अ सिंगल एलिमेंट और इट इज ए ऑल द एलिमेंट्स आर सेम राइट. सो यू कैन हैंडल द when there are all the this kind of scenarios. Understood Rahul? Yes sir. Okay, so this is how you are going to improve your solution and you can test your code with the different types of the test cases because these are the corner test cases. So it may happen that your code that you have written it may work for some kind of the use cases and it is not going to work for the different kind of use cases. So you have to test your code or you have to write down your code and the difficult test cases. Let's say you have taken all the same numbers, you have taken all the negative numbers. Let's say I have taken all the negative numbers, -5, -7, -10 or 0.
So would it going to work? Yes, sir. Yes, because it is going to, it is doing the comparison only. So it doesn't make any difference whether it is a negative number or positive number. Okay, so what is max here? Max, it will take a -5. Okay, now Hmm. it is going -7, it is not going to update, then its second max -10 and 0, it is going to update here. Okay, it is going to work. So what we have done here, we have started with a simple problem, finding the max. Okay, that we have given a solution. Okay, then we have given the solution, then interval is asking to another variant of the question, it is for asking the second max. For second max, we have given a solution, but it was with the higher space complexity and the higher time complexity. Now, what we are doing it here? So in that case, what is happening? We have not sorted the array. Okay. So how many times we are traversing the array? Single time, right? We are starting from this point and Hmm. reaching to the end Yes, of the sir. array. So we are traversing the array with the single time. So what would be the time complexity for this solution, Rahul? Because Order of n. So don't worry, order of n. because because we Yes, will be sir. having the separate session on the time complexity and the space complexity. So what is order of n? Because we are traversing this array on a single time. Okay, so my time taken to traverse this complete array will be decided only on the number n. What is the size of an array? If size is small, then it will take a small time. If the size of the array is big, then it will take the more time. So it is completely dependent on the size of an array. And what is the size of array? Is n. So my time complexity is order of n, N. right? And what is my space complexity? I am not taking any extra space. Am I using any extra space? No. What I No, am sir. taking only two max and s max. I am taking two constant space. So my space complexity is order of 1, because my max or x max will be constant. Okay. I am not going to change my memory if I am going to change the input size of my array. So despite of that change, I am going to change only these two. I am going to have only these two variables in the solution. Okay. It is not dependent on the size of the input. If my space is changing, okay, with रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ द इनपुट, तब मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है. अभी मेरा साइज इनपुट का कुछ भी हो, मैं सिर्फ कांस्टेंट वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, एक मैक्स और एस मैक्स, तो मेरी कांस्टेंट मेमोरी हमेशा ही मेरी मैक्स ही यूज करूंगा, एक्स मैक्स यूज करूंगा, तो मेरी सिर्फ दो इंटीजर मेमोरी यूज हो रही है, एक्स्ट्रा स्पेस, बाकी कुछ यूज नहीं हो रहा है. तो दिस मेरा कांस्टेंट स्पेस है. तो माय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ 1, सो n, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1. ये समझ में आया राहुल, ये नहीं समझ में आया? Yes, sir. Okay, space complexity order of आगे. n है and time complexity order of n है. Okay, so these are very simple problems जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, and they expect you कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आप बहुत आसानी से दे पाओ उसका सॉल्यूशन. Okay, अब हम एक तीसरी प्रॉब्लम करते हैं. Okay, let's say I have given an array. Okay, मेरे पास सिंपल array दिया हुआ है मुझे. Okay, and it is, let's say it is having some 0, then 1, then 0, 0, 1, 1 and 0. It is something like that. It is a combination of 0 and 1. 0 and 1. Only two types of elements are there. It is an integer array of 0 and 1. Okay. Now I have to rearrange the elements in within this array in such a way कि आपके zero size, zero आपके साथ पहले आ जाए और 1 आपके बाद में पहुंच जाए. 0, 0, 0, 0, and I have 3, 1, 1, 1 and 1. Okay. So how we can do it, Rahul? What is coming in your mind? Sir, ascending order में sort होगी. Okay, this is one of the solution. What else? सर स्वैप कर सकते हैं, मतलब बट आपने एक जीरो सॉल्यूशन बबल दिया, सॉर्ट. आपने राहुल आपने प्रॉब्लम को समझ लिया, ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप इज डन. ओके, नाउ द सेकंड स्टेप, आपने सॉल्यूशन दिया, विल सॉर्ट द एरे, Yes, sir. राइट.
अगेन सॉर्टिंग एरे में हम लोग क्या करेंगे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, मिनिमम ऑर्डर ऑफ n log n log n. now you have given the solution, that is the right solution, but can we optimize the solution that so that we can have the time complexity lesser than that? Now this is we are at the third point, optimizing the solution. Optimize solution. Can we reduce the time complexity? Hmm. Not sure, sir. Okay, not sure. आपके दिमाग में क्या आ रहा है, कैसे, कुछ तो आइडिया आ रहा होगा कि कैसे करेंगे? तो सॉर्टिंग ही आ रहा था क्योंकि ओके और क्या ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या है कि अभी हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, ठीक है ना, तो आप धीरे धीरे सब टेक्निक आप सीख जाओगे। ओके, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ टेक्निक्स, ए लॉट ऑफ एल्गोरिथम काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू विल लर्न इन दिस कोर्स, हाउ टू अप्रोच ए प्रॉब्लम। इस तरह की प्रॉब्लम हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि मुझे बेसिकली इस एरे को रीअरेंज करना है। ओके एक तरीका तो ये है, लेट्स से कि मैं क्या कर सकता हूं, आई विल टेक एन एक्स्ट्रा स्पेस। Okay, I will take an extra space with the same size. Okay, ठीक है, विद द सेम साइज मैंने एरे ले लिया। उसके बाद में लेट से आई विल स्टार्ट विद 0, फर्स्ट एलिमेंट आपका 0 आया। ओके देन पुट इट 0, देन 1 आया। ओके मैंने एक काउंट रखा, काउंट ऑफ 1, और काउंट ऑफ 1 मैंने इंक्रीज कर दिया। लेट से आई विल डू वन थिंग, ठीक है ना, फिर मैंने फिर से 0 आया, फिर से 0 यहाँ डाल दिया, फिर से 0 आया, फिर 0 डाल दिया, फिर 1 आया, इसका इक्वल टू काउंट इक्वल टू 2 कर दिया। जितने मेरे 1 आ गए इसका काउंट को मैं इंक्रीज करता चला गया। ओके या एक काम मैंने किया कि मैंने इसमें सारे मैंने 0 काउंट कर लिए पहले। ओके और मैंने सारे से 1 काउंट कर लिए। ये मैं कर सकता हूँ सिंगल आइटरेशन में, आई कैन डू इट। I will traverse the Yes. array. Okay, I will traverse the array from this side and I will count all 0 and I will count on 1. Let's say तो count किया जाएगा, मेरा count of 0 will come. How many 0 are there? 1 2 3 4. 4. And count of 1 मेरे कितना जाएगा? 3. Okay, and 3. what I can do, I will just rewrite this array. यहाँ से start करूंगा, first 4 position पे 0 डाल दूंगा। Okay, last की 3 position में 1 डाल दूंगा। This is the easiest solution, क्योंकि मैंने आपके पहले Yes. 0 काउंट कर लिए सारे, फिर मैंने 1 काउंट कर लिया, और उसके बाद मैंने क्या किया, एरो को फिर से एक बार ट्रेवर्स किया, और शुरू क्योंकि मेरे 0 कितने थे 4, तो फर्स्ट की 4 पोजीशन पे 0 डाल दिया। ओके और लास्ट की 3 पोजीशन मैंने 1 डाल दिया। ये वर्किंग सॉल्यूशन है, इसमें मुझे एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं है। Yes. इसको इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉल्यूशन समझ में आ गया। ये आपके कितने में हो गया, ये आपका ऑर्डर ऑफ एन में हो गया, क्योंकि आपने क्या किया, इसको सिर्फ एक बार ट्रेवर्स किया, काउंट ऑफ 0 निकाले, काउंट ऑफ 1 निकाले। दिस इज वन सॉल्यूशन। हमने काउंट करके आपने इसको किया। लेट्स से मैं काउंट नहीं करना चाहता हूं, आई वांट टू गो फॉर एनी अदर मेथड। उसने कहा कि चलो ठीक है, आपने काउंट कर लिया। लेट्स से ये प्रॉब्लम को अगर मैं ऐसे इसको रिप्लेस कर दूं कि 0 1 ना हो के, लेट्स आपके इस तरीके से है कि नेगेटिव एलिमेंट्स में पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। ओके लेट्स से कि आपके -2 -5 then 6 then 7, let's then -3 then 8 and -1। अब इस केस में आप ये काम नहीं कर सकते। लेट्स मुझे रीअरेंज करना है कि नेगेटिव एलिमेंट सारे पहले आ जाएं और पॉजिटिव एलिमेंट सारे बाद में चले जाएं। उस केस में आई कैन नॉट डू दिस थिंग, राइट। तो यहाँ पर 0 और 1 थे, मैंने काउंट कर लिया, उसको मैंने 0 डाल दिया, फिर 1 डाल दी, बट आई कैन नॉट डू द सेम थिंग हेयर। कैन आई डू द सेम थिंग हेयर राहुल? No, sir. नो। तो उस केस में फिर आपका ये सेम सॉल्यूशन, आप यहाँ पे सेम तरह की प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको 0 1 रीअरेंज करना है, यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर रीअरेंज करना है। सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, लेकिन आप सेम सॉल्यूशन जो यहाँ पर आपने अप्लाई किया यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। सो व्हाट कुड बी द अनदर अप्रोच फॉर दिस प्रॉब्लम? तो इस तरह केस हम लोग क्या करते हैं, वी विल टेक 2 पॉइंटर्स। okay we will take 2 pointers, let's say one is I, okay, and let the second pointer j, let's say both are pointing at the 0th position। okay integer I and j both are at the 0 position, array की 0 position पे। okay
अभी मेरा जे क्या करेगा, हम्म, जे को क्या करना है, जे को एक्चुअली मुझे करना क्या है, मुझे ये जे क्या करेगा, जीरो को ढूंढता हुआ जाएगा, इट विल कीप ऑन सर्चिंग द जीरो इन द एरे, और जहां भी इसको जीरो मिलेगा वो क्या करेगा उसको, ये आई मेरा क्या है, आई स्टार्टिंग पोजीशन पे रहेगा यहाँ पर, जहां भी इसको जे ढूंढता हुआ जाएगा, जहां भी उसको वन मिलेगा वो क्या करेगा, इससे उसको रिप्लेस कर देगा। तो जीरो ढूंढता जाएगा, उसको स्टार्टिंग में डाल स्वैप करता जाएगा एलिमेंट्स को। लेट्स से इस एग्जांपल में लेते हैं, लेट्स से मेरा एग्जांपल ये है 0 0 1 1 0 0 1 0 0। तो जे पहले आई और जे आपके दोनों यहाँ पर थे, आई भी और जे भी, ठीक है स्टार्टिंग में। तो जे जाएगा, उसको जीरो मिला, जीरो को इससे रिप्लेस कर देगा, जीरो से जीरो से रिप्लेस कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो से जीरो को रिप्लेस कर दिया, दोनों इंक्रीज हो गए, आई भी यहाँ पर आ गया और जे भी यहाँ पर आ गया। ओके, अब जे फिर आगे ढूंढेगा, वन मिला, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ जे को आगे बढ़ा देगा। अब जे यहाँ पॉइंट कर रहा है, अब जे यहाँ पॉइंट कर रहा है, लेकिन आई अभी भी आपका यहीं पर है। ओके, आई इज हेयर, फिर इसको जीरो मिल गया। ओके, फिर जीरो को जीरो से रिप्लेस कर देगा। ओके, और आई आपका कहाँ जाएगा, आई आपका यहाँ पर आ जाएगा, हियर इज योर आई। ओके, नाउ आई इज हेयर, दिस इज आई, और जी आपका कहाँ पॉइंट करा, यहाँ पर। ओके, फिर इसको जीरो मिला, अब यहाँ पर आई पे वन था, ये क्या करेगा, इसको इससे रिप्लेस कर देगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पास जीरो आ जाएगा, और यहाँ पर आपको वन आ जाएगा। ओके, और नाउ योर आई आपका कहाँ पर आ गया, आई इज पॉइंटिंग टू दिस वन, आई आपका यहाँ पे पॉइंट करेगा, और जी कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, इस पे। वन आ गया, कुछ नहीं करेगा, फिर से जीरो मिला इसको, फिर वन और जीरो को स्वैप कर देगा, जीरो यहाँ पर जाएगा, वन यहाँ पर जाएगा। सो आपका एक पॉइंटर क्या कर रहा है कि एक पॉइंटर आपका जीरो ढूंढता हुआ चल रहा है, जैसे उसको जीरो मिलेगा वो क्या करेगा, उसको स्टार्टिंग से स्वैप कर देगा। ओके, तो ये जे एलिमेंट आपका जीरो ढूंढता हुआ जाएगा, जहां भी इसको जीरो मिलेगा उसको स्टार्टिंग से स्वैप कर देगा। जैसे यहाँ पे उसने एक एलिमेंट डाला, वो आपकी जिस पोजीशन स्वैप करना, वो पोजीशन आपके आगे खिसक गई। ओके, क्योंकि तो ये सर वो ऑलरेडी यहाँ पे जीरो स्टार्टिंग ऑलरेडी से आ स्वैप चुका है। करेगा, आई से स्वैप करेगा। आई के साथ करेगा, जे आपका ढूंढता हुआ जाएगा, आई के साथ शिफ्ट करेगा, स्वैप करेगा। अगर आपका कोड लिखते हैं तो देखो आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स हम क्या करेंगे इसका, वेरी सिंपल कोड। लेट्स सी फॉर, हम क्या करते हैं, लेट्स से फॉर आई इक्वल टू जीरो, ओके, एंड आई लेस देन एन कहां तक चलेगा, लास्ट एलिमेंट तक, आई प्लस प्लस। ओके, वेरी सिंपल। और हमने स्टार्टिंग में लेट से आई बराबर जीरो लिया और जे इक्वल टू बी हमने जीरो लिया, दोनों एलिमेंट्स मेरे जीरो पर है। ओके, इस फॉर लूप के हिसाब से अभी क्या करेगा, वो सिर्फ ये चेक करेगा इफ कोई भी एलिमेंट, दोनों अभी आई और जे किसको पॉइंट कर रहे हैं, जीरो को। इफ ए जे, यानी जे क्या करेगा, ढूंढता हो जाएगा एलिमेंट, इफ ए जे इज ग्रेटर देन जीरो, सॉरी मुझे जीरो को स्टार्टिंग में लाना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इफ इट इज लेस देन जीरो, इफ इट इज लेस देन, क्योंकि मैं जीरो वन करना है तो जीरो कर देते हैं, इफ इट इज इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो के बराबर है तो क्या करेगा ये, क्योंकि जे क्या करेगा, जीरो ढूंढता हुआ जाएगा, तो अगर जीरो के बराबर है तो क्या करेगा ये, व्हाट इज गोइंग टू डू, स्वैप कर देगा, किस किस रिप्लेस को, स्वैप, आई और जे को। यस, ए आई एंड ए जे, स्वैप का कोड हमें आता है, राइट, तो मैं कोड यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इसके अगर आ गया तो इसको स्वैप कर देगा। तो स्वैप करने के बाद एक्चुअली होगा क्या, किस किस को इंक्रीज करेगा ये, आई को और जे को। आई तो आपका ऑलरेडी और इंक्रीज हो ही रहा है, आई को इंक्रीज हो रहा है, जे जे को और वापस आ इंक्रीज कर जाएगा। देगा, जे प्लस प्लस हाँ, कर देगा। यस। ओके, और अगर उसको नहीं मिलता है तो हर बार आई को इंक्रीज करता जाएगा, जे को इंक्रीज नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें हमारा ढूंढ क्या रहा है, जे ढूंढ रहा है ना, हमारा आई नहीं ढूंढ रहा है, तो ये बेसिकली ये यहाँ पर हमेशा आपका जे इंक्रीज होना चाहिए, इट शुड बी, यहाँ पर आपका होना चाहिए इट शुड बी जे, क्योंकि जे मेरा ढूंढ रहा है। ओके, और मेरा ए जे ढूंढता हुआ जा रहा है, तो यहाँ पर मेरा आई, इट शुड बी आई। ओके, जे है जो मेरा ढूंढता हुआ जा रहा है, तो जे मेरा हमेशा ढूंढता हुआ जाएगा, उसको नहीं मिलेगा तो फिर भी इंक्रीज कर जाएगा वो, और कहाँ तक चलेगा, लास्ट एलिमेंट तक। ओके, राइट, तो जी मेरा लास्ट एलिमेंट तक चलेगा, लेकिन आई मेरा तभी इंक्रीज होगा जब वो स्वैप कर देगा। ओके, उससे पहले इंक्रीज नहीं होगा, राइट। तो आई इक्वल टू जीरो, जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, और ये जे उसको कभी भी जीरो मिलेगा तो क्या करेगा, ए आई और जे को स्वैप कर देगा और आई को प्लस प्लस कर देगा, और ये लूप आपका चलता रहेगा जब तक कि उसको ये एंड तक नहीं पहुंच जाता।
ये कोड समझ में आ गया राहुल, कैसे यस काम सर। कर रहा है? क्या हम यही सेम कोड हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? मुझे नेगेटिव और पॉजिटिव आइटम मुझे सेग्रीगेट करना है, पहले नेगेटिव आइटम आ जाए फिर बाद में पॉजिटिव आइटम आ जाए। तो मुझे क्या करना है, अब ये जो पहले जीरो ढूंढ रहा था एक्चुअली में क्या ढूंढेगा, कोई भी एलिमेंट जीरो से छोटा है, इफ एज तो इज छोटा है। लेस देन जीरो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सिर्फ लेस देन जीरो। लेस देन। लेस देन जीरो आ गया, लेस देन जीरो या ए ऑफ आई? नहीं लेस देन जीरो, क्योंकि मुझे नेगेटिव और पॉजिटिव एक तरफ करना है, मुझे अच्छा, नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव अलग करना है, ठीक है। तो नेगेटिव ढूंढता हो जाएगा, तो जैसे उसको नेगेटिव मिलेगा वो क्या करेगा, उसको इससे स्वैप कर देगा। हम्म। ओके, और यस। सिर्फ इतने चेंज है, हमने क्या किया, हमें जीरो वन सेग्रीगेट कर दिए और हमने नेगेटिव और पॉजिटिव सेग्रीगेट कर दिए, कोड में कोई चेंज नहीं है। और आप देखोगे दोनों प्रॉब्लम आपको देखने में अलग लग रही है, लेकिन एक्चुअली में दोनों प्रॉब्लम सेम है। ओके, और हमने नेगेटिव और पॉजिटिव हमने सेग्रीगेट कर दिए। कई कोड काम करेगा सब पे, या कहीं हमारा कोड ये फेल होगा? सर अगर डिवाइड ही करना है नेगेटिव पॉजिटिव को तो काम कर रहा है, जीरो वन में भी काम कर रहा है। लेट से अभी हम सिलेक्ट कॉर्नर केसेस लेते हैं, लेट से मेरे पास सारे नेगेटिव आइटम्स हैं, लेट से -5, -6, -7 और -8, लेट से फॉर एग्जांपल। तो क्या कोड काम करेगा मेरा? लेट से आई और जे मेरे दोनों यहीं पर है, आई और जे बोथ आ गया। ओके, सो एज इज लेस देन जीरो, तो ये खुद को खुद से स्वैप कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद जे से। अब कहाँ पे है, यहाँ पे आ गया, राइट। ए आई आपका, ये आप आई आपका अभी वहीं पर है। -6 और -5, ओके, लेस देन जीरो है, तो क्या करेगा ये, -6 को -5 से रिप्लेस करेगा, राइट, करेगा। यस सर। तो यहाँ पे आपका -6 आ गया, यहाँ पे आपका -5 आ गया। ओके, अब आपका आई कहाँ पॉइंट कर रहा है, आपका आई यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और जे आपका यहाँ पे आगे बढ़ पॉइंट गया। कर रहा है, राइट। फिर क्या करेगा, फिर से -6 और -7 को रिप्लेस कर देगा। ओके, -5 और -7, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, -6, -7, ओके, एंड इट इज नाउ -5। ओके, अब आपका आई कहाँ पॉइंट कर रहा है, आई यहाँ पॉइंट कर रहा है और जे आपका यहाँ पे पॉइंट कर रहा है लास्ट में, राइट। फिर लास्ट में पहुंच जाएगा, उसको फिर छोटा मिल गया, फिर प्लेस कर देगा, तो यहाँ पे आपका -8 आ जाएगा और यहाँ पे आपका -5 आ जाएगा। तो एक तरीके से काम तो आपका कोड कर रहा है, उसने एरे को रीअरेंज कर दिया, लेकिन मेरी जो प्रॉब्लम थी वो कोड मेरा अभी भी काम कर रहा है, इसने उसने कुछ गड़बड़ कर दिया, कोड एक्चुअली काम कर रहा है। ओके, इफ आई टेक ऑल द पॉजिटिव एलिमेंट्स, लेट्स से 7, 8, 9 और 10, तो इस लूप में जाएगा ही नहीं। तो आई आपका यहाँ पे रहेगा, जे पहले यहाँ पे पहुंचेगा, कुछ नहीं करेगा, फिर जे यहाँ पहुंचेगा, कुछ नहीं करेगा, फिर जे आपका यहाँ पहुंचेगा, कुछ नहीं करेगा, फिर जे आपका आगे निकल जाएगा, कुछ नहीं करेगा। तो आपके उसको कुछ भी चेंज नहीं करेगा वो, राइट। यस तो सर। आपका कोड चलता रहेगा। सो दिस इज द वन ऑफ, देखिए हमारा कोड ये काम कर रहा है, तो हमने देख लिया कोड हमारा काम कर रहा है। तो हमने दो अप्रोच देखी, 0 1 के लिए एक ही अप्रोच देखी, हमने काउंट कर लिया, एक हमने ये अप्रोच देखी। एक और अप्रोच काम करती है, एक अप्रोच हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी तक हमने दोनों पॉइंटर कहां से लिए, स्टार्टिंग से लिए। ओके, वी कैन हैव द बोथ द पॉइंटर्स फ्रॉम, एक पॉइंटर हम यहां से चला सकते हैं आई, और एक पॉइंटर हम लास्ट से चला सकते हैं। ये मैं लेट से मैं इंटरव्यू मैंने आपको हिंट दी है कि लेट से मैं दोनों पॉइंटर एक स्टार्टिंग से लेता हूँ, एक लास्ट से लेता हूँ, कोड में क्या चेंज होगा आपके। तो स्टार्टिंग में आई आपका क्या होगा, 0, और जे कितना है आई आपका, जीरो से होगा, जे n-1, राइट। -1। अब मेरे इस कोड में क्या चेंज होगा, तो लेट्स शुरुआत में फॉर लूप में जे नहीं आएगा, अलग से फॉर लूप होगा उसका। लेट्स मैं वाइल लूप लगा लेता हूँ इसके लिए, ठीक है ना। हम्म। वाइल, तो ये मेरा, अब मेरा ये काम कैसे करेगा, मतलब हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। मैंने एक लूप यहां से लिए, एक लूप यहां से लिए, तो अब मैं इसको रीअरेंज कैसे करूंगा, मेरी क्या एल्गोरिथम काम करेगी इसमें, मेरी एल्गोरिथम क्या रहेगी इसमें, हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। अब जो ना ये आए। एलिमेंट है, ये नेगेटिव वाला एलिमेंट, इसको तो क्या करना है, नेगेटिव एलिमेंट ये क्या करेगा, पॉजिटिव, अगर इसको नेगेटिव मिलता है कुछ नहीं करेगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मिलेगा फिर आगे बढ़ जाएगा, जहां भी इसको पॉजिटिव मिलेगा वहां रुक जाएगा। ओके, और ये क्या करेगा, ये नेगेटिव आइटम ढूंढता हुआ मिलेगा, इसको नेगेटिव मिलेगा यहीं रुक जाएगा। तो ये नेगेटिव मिल गया, इसको पॉजिटिव मिलेगा, दोनों को स्वैप कर देगा। तो नेगेटिव यहां आ गया, पॉजिटिव यहां आ गया, फिर आगे नेगेटिव, ये क्या ढूंढता हुआ, पॉजिटिव ढूंढता हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव तो इसके लिए ठीक है, इसको सिर्फ पॉजिटिव चाहिए।
इसको नेगेटिव चाहिए क्योंकि इसको नेगेटिव हटाना है, पॉजिटिव लाना है, तो ये नेगेटिव ढूंढता हो जाएगा। जहां दोनों अपोजिट उसमें आ जाएंगे कि इसको पॉजिटिव चाहिए, इसको नेगेटिव मिल गए, दोनों को रिप्लेस कर देगा। समझ गए कैसे काम कर रहा है राहुल? तो ये -3 को फिर इधर ले आएगा 6 की जगह। यस। तो ये कैसे काम करेगा वाइल, और कब तक ये कोड कब तक चलेगा? जब तक कि आपका ये जो आई वाला है ये जे से छोटा रहेगा, राइट? आई पॉइंटर इज लेस देन जे, क्योंकि अगर वो उसके आगे निकल जाएगा तो फिर से वही काम करना शुरू कर देगा। तो मेरा कोड कब तक चलेगा? वाइल आई इज लेस देन जे। जे। ओके, तो ये कैसे काम करेगा? लाइट पहले तो क्या करेगा मेरा एक पॉइंटर, क्या करेगा, पहले वाला पॉइंटर मेरा तब तक चलेगा जब तक कि उसको नेगेटिव आइटम मिलते हुए जा रहे हैं। ओके, तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे राहुल, मुझे क्या लिखना चाहिए? If a of k is less than 0, नहीं नहीं, मुझे तो लूप पूरा चलाना है ना, ये लूप पूरा चलाना है। हम्म, तो कैसे सर चलेगा? वाइल, वाइल क्या करूं मैं, ए क्या बोल देता हूँ इसको, आई बोल देता हूँ, ए आई, और लेट्स में निकालता हूँ कि ये नेगेटिव नंबर है कि नहीं है। ओके, इज इक्वल टू 0, नहीं नेगेटिव नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी, इट इज नेगेटिव नंबर, ओहो नो, माय बैड। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इफ इज ए आई इज लेस देन, इसको लेस देन 0 ढूंढना है कि ग्रेटर देन 0 ढूंढना है? इसको क्या ढूंढना है इसको राहुल? ai को लेस देन 0। नहीं, इसको ग्रेटर देन 0 ढूंढना है। अगर इसको लेस देन 0 मिला तो उसके लिए ठीक है, इसको कहां पे स्वैप करना है? इसको लेस हाँ ग्रेटर देन 0 ठीक मिलेगा, ठीक राइट? है ठीक। वाइल वाइल जब तक लेस देन 0 तब तक ये चलता रहेगा। ओके, वाइल ई आई इज ग्रेटर देन 0, ये क्या करता रहेगा आपका, आई प्लस प्लस करता रहेगा। ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन। ओके, ये अभी कहां पे रुक जाएगा? जहां पे उसको पॉजिटिव एलिमेंट मिल जाएगा, नेगेटिव है तब तक चलता रहेगा, राइट? ओके, राइट। और एक कंडीशन हम यहाँ पे एक और लगाएंगे, वाइल एंड दूसरी क्या हो जाएगी आपकी, आई इज लेस देन जे, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका आई जो है उससे बाहर ही निकल जाए, ठीक है ना? हम ये भी चेक करना है हर बार कि आपका आई जे से बाहर तो नहीं निकल गया। सो वी हैव टू चेक बोथ द कंडीशंस। ओके, आई प्लस प्लस आ गया। दूसरा आपका क्या लगेगा, लास्ट से चलेगा, वाइल ए जे इज ग्रेटर देन 0 तब तक, और आई एक इज, सेकेंड, ये क्या करेगा आपका, जे माइनस माइनस करेगा, राइट? फर्स्ट वाली में a ऑफ i लेस देन 0 होगा। हाँ, क्योंकि उसको क्या करेगा, उसको नेगेटिव, उसको नेगेटिव पहले लेके आने हैं, तो क्या करेगा, नेगेटिव जब तक उसको मिलते रहेंगे तब तक चलता रहेगा, जब पॉजिटिव मिलेगा तभी रुक जाएगा वो। ठीक। जैसे -5 मिला, -3 मिला, -2 मिला, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल सही है, ऐसे ही तो चाहिए मुझे। ओके, तो तब तक उसको ठीक है बाईपास करता रहेगा, जैसे उसको पॉजिटिव मिलेगा वहां पे रुक जाएगा, क्योंकि ये गलत एलिमेंट है उसके हिसाब से, ये यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए, राइट? ठीक है सर। ठीक है, समझ में आया राहुल? यस सर, ये नहीं आया? आ गया। तो ऐसे वो लास्ट से क्या करेगा, पॉजिटिव एलिमेंट ढूंढता हुआ जाएगा, जब उसको नेगेटिव मिल जाएंगे वहां पे रुक जाएगा, और कब तक चलेगा, जब तक कि आई इज लेस देन जे। ओके, और ये क्या करेगा, यहाँ पे चेक कर लेगा, इफ आई लेस देन जे के बराबर है तभी चेंज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ऐसा वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। इफ आई इज लेस देन जे क्या करेगा, दोनों को स्वैप कर देगा। स्वैप कौन कौन से एलिमेंट, ए आई एंड ए जे, और किस किस को इंक्रीज कर देगा ये यहाँ पर, जब स्वैप कर देगा तो आई प्लस प्लस भी हो जाएगा, और जे माइनस माइनस जे भी हो जाएगा। माइनस। दिस इज अनदर अप्रोच, जहां हमने दो पॉइंटर लिए हैं, एक स्टार्टिंग से लिया हमने, एक हमने एंड से लिया। ओके, और हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, स्टार्टिंग वाला पॉइंटर मेरा क्या करेगा, पॉजिटिव एलिमेंट सर्च करेगा, और निगेटिव, ये लास्ट वाले एलिमेंट में निगेटिव एलिमेंट सर्च करेगा। ओके, और जहां पे इसको पॉजिटिव निगेटिव मिल जाएंगे दोनों को क्या कर देंगे, स्वैप कर देगा। ओके, और जो स्वैप करेगा ये आई भी इंक्रीज हो जाएगा, जे भी इंक्रीज हो जाएगा, और कब तक चलता रहेगा, जब तक ये आई इज लेस देन जे। अगर दोनों क्रॉस हो गए इसका मतलब कि मेरा काम हो गया, वो उसने हाफ एरी, दिस इज क्रॉसिंग, ठीक है ना? क्रॉस हो गया इसका मतलब मुझे करने की जरूरत नहीं है। ये कोड समझ में आ गया वरुण? ये इसमें, या इसमें कोई अभी ऐसी कोई चीज जो समझ में नहीं आई है? आ गया सर। तो इस कोड की अब बताओ मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, हम पूरा एरे को कितनी बार ट्रेवर्स कर रहे हैं? सर आए भी एक बार ही चल रहा है, और भी एक बार ही चल रहा है, फिर उसमें
यानी कि हम बेसिक देखा जाए तो हम एरे को सिर्फ एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, मतलब कुछ पार्ट आई चलेगा कुछ पार्ट जे चलेगा, तो अल्टीमेटली हम पूरे एरे को एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, राइट। यस सर। यानी कि मेरा सॉल्यूशन बेसिकली साइज ऑफ एन पे डिपेंड करता है कि जितना बड़ा साइज एन ऑफ एरे का साइज होगा उतना मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा मेरा सॉल्यूशन, राइट, क्योंकि मैं सिंगल बार ट्रेवर्स कर रहा हूँ। तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी मेरी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन, राइट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी मेरी, 1। ऑर्डर ऑफ वन, राइट, क्योंकि मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यूनिट एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहा हूँ। लेट्स से मैंने 2 आई लिया है और जे लिया है सिर्फ, और एनीथिंग एल्स आई एम नॉट यूजिंग, राइट। सो माई टाइम यस। कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ 1। तो हमने आज कितने सॉल्यूशन किए, ये दोनों, ये हमने ये कोड समझ में आया वरुण, जो हमने अभी किया है रीअरेंज करने वाला। यस सर। तीनों अप्रोच समझ में आ गई। ये फर्स्ट अप्रोच थी हमारी जब हम 0 1 को काउंट कर रहे थे। सेकंड अप्रोच थी जब हमने आई और जे 2 पॉइंटर ले, लेकिन दोनों स्टार्ट से लिए। एक थर्ड अप्रोच हमने ली जब आई पॉइंटर स्टार्ट से था और जे पॉइंटर मेरा लास्ट से था। ओके, इसको हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो 0 1 है या नेगेटिव पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, वी कैन अप्लाई इट, राइट। ओके, अब लेट्स से मेरे पास अभी हमने जो कोड किया है उसका एक वो कहता है कि चलो ठीक है, आपने 0 1 को तो आपने कर दिया है, ठीक है। नाउ लेट्स से फोर्थ प्रॉब्लम, उसने कहा कि आपके पास एरे था 0 और 1 का, आपने उसको 0 एंड 1 थी आपके पास, 0 0 1 1 0 एंड 1, आपने इसको सेग्रीगेट कर दिया कि 0 आपके स्टार्टिंग में आ गए, 1 आपके बाद में चले गए। इसको बोलते हैं टू वे पार्टीशनिंग। कि आपने टू वे पार्टीशनिंग कर दी, दो चीजें थी आपने और उसके एरो को आपने पार्टीशन कर दिया। उसने कहा ठीक है, यू हैव, आपने सोल्यूशन दे दिया, क्या हम इसको 0 1 एंड 2 के लिए कर सकते हैं। लेट्स मेरे पास एलिमेंट है 0, इसका थर्ड वेरिएंट आ गया फिर प्रॉब्लम का। लेट्स मेरे पास 0 भी है, लेट्स से 0, देन आई हैव 1, देन लेट्स से 2 2 1 0 1 1 2। अब मुझे क्या करना है कि इसको कैसे रीअरेंज करना है, 0 मेरे साथ स्टार्टिंग में आ जाए, देन 1 देन 2, तो 0 कितने हैं, 1 2, मेरे पास 3 जीरोस है, 0 0 0, हाउ मेनी 1 1 1 1 4 1 है, 1 1 1 1, देन हाउ मेनी 2s, 3 2s, 2 2 2। इसको बोलते हैं थ्री वे पार्टीशनिंग। अच्छा। अब मुझे वही पहले वाले कोड को थोड़ा सा मुझे क्या करना है कि उसको हल्का सा चेंज करना है कि बेसिकली 0 1 और 2 के लिए काम कर जाए। ये उसका वेरिएंट है। ओके ओके, डोंट वरी। अगर आपको हो सकता है कि आपको आपको बहुत राहुल डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नहीं सर, ठीक है। अभी एक्चुअली हम लोग जस्ट काइंड ऑफ डेमो क्लास है, तो हम रैंडम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। ओके, जब हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे स्ट्रक्चर्ड वे में, तो चीजें आपको धीरे धीरे आपको फिर आराम से चीजें बहुत ही स्मूथ वे से जाएंगी, ठीक है ना। अभी तो हम रैंडम को भी प्रॉब्लम उठा रहे हैं, उसको कर रहे हैं। ओके, इसलिए ओके। सो अब टू वे पार्टीशनिंग को हम इसी जो हमने सॉल्यूशन दिया है इसी को हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं थ्री वे पार्टीशनिंग के लिए। सर कोई तीसरा अरे मतलब लूप चलाए जो नहीं, हमें अलग। सिर्फ सिंगल ही चलाना है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, लेट से अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हमने क्या किया था कि वी वर टेकिंग आई और जे, यहां हम लेते थे आई और जे, ठीक है। ओके, और जे हमारा क्या करता था, 1 तो 0 को ढूंढता हुआ जाता था, जहां उसको मिलेगी उसको वापस स्वैप कर देता था। यही हमारा सोल्यूशन था। अच्छा। ओके, तो 2 के लिए तो हमारा काम कर रहा था, वो 3 के लिए कैसे काम करेगा। कैन वी टेक 3 पॉइंटर्स। लेट्स आपको मैंने आपको एक हिंट दिया है इंटरवल एंड आई एम सेइंग कि अभी आपने ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया 2 पॉइंटर से, अब मेरे पास 3 चीजें तो रीअरेंज करनी है, 0 1 एंड 2। सो कैन आई टेक 3 पॉइंटर्स एंड आई। बोला था मैंने, बोला था मैंने शायद 3 पॉइंटर्स लेके आई जे के। तो उसको कैसे करेंगे, वो सेम सॉल्यूशन है, मैंने 3 पॉइंटर ले ली। लेट्स में इसको आई जे के से कंफ्यूजन हो जाता है। लेट्स मैंने बोला इसको, लेट्स से एक पॉइंटर मैंने बोल दिया, लेट्स से 0 पॉइंटर। ओके, एक मैं लेट्स से बोल दिया 1 पॉइंटर। इसको 1 पॉइंटर ना बोल के मैं इसको बोलता हूँ, एक्चुअली मैं इसको पॉइंटर बोलता हूँ। और एक पॉइंटर मेरा जो 2 को फिक्स करेगा, लेट्स इसको मैं 2 जो
0 2 भी कंफ्यूजन करेगा। लेट्स से स्टार्ट और एंड करते हैं। स्टार्ट पॉइंट स्टार्ट हो गया, एक मेरा एंड हो गया पॉइंटर, और एक मेरा हो गया जो एक्चुअली में पॉइंटर होगा। तो ये मेरे 3 पॉइंटर हैं, स्टार्ट, एक पॉइंटर और एक एंड। सो अब मुझे इसको, अब मेरा सॉल्यूशन कैसे काम करेगा? पहले मेरा सॉल्यूशन क्या करता, पॉइंटर आगे ढूंढता हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही उसको 0 मिलेगी उसको कहां डाल देगा, स्टार्टिंग में। ये मेरा पहला सॉल्यूशन था। अब वो क्या करेगा, एक्सटेंड कर, जैसे उसको 2 मिलेगा उसको कहां डाल देगा, एंड में। एंड में। तो स्टार्ट मेरा किसको पॉइंट करा हुआ एक्चुअली में, 0 को। पॉइंटर मेरे स्टार्टिंग में 0 पे होगा, और एंड मेरा किस पे होगा एक्चुअली में, n-1। तो जैसे ही उसको 0 मिलेगा स्टार्टिंग में स्वैप करेगा, 2 मिलेगा एंड में स्वैप करेगा, और हमारा ये आगे ऐसे जी मेरा मूव करता चला जाएगा। सॉल्यूशन समझ में आया वरुण? सॉरी राहुल। अब इसका कोड लिखने का ट्राई करते हैं। लेट्स बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे हमने पहले लिखा था। व्हाइल कैसे करेगा, माई स्टार्ट, स्टार्ट मेरा इंक्रीज होता जाएगा और ये एंड मेरा डिक्रीज होता जाएगा, व्हाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, राइट? सो अभी कैसे काम करेगा मेरा स्टार्ट, और मैं इसको लिख भी देता हूं। स्टार्ट मेरा क्या है, मेरा स्टार्ट इज, स्टार्ट इक्वल टू पॉइंटर इक्वल टू 0, ओके, एंड एंड इज इक्वल टू n-1, ओके। अभी कैसे होगा, ये क्या देखेगा, पहले कंडीशंस देखा, इफ क्या देखेगा, इफ ए, मैं इसको पॉइंटर को स्मॉल कर देता हूँ, p कर देता हूँ। इफ ए p, पॉइंटर इज नथिंग बट द p, इफ a p इज क्या है, इक्वल टू 0 है, तो क्या करेगा, किससे स्वैप करेगा इसको, स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से, आई स्टार्ट से, से। स्टार्ट से, राइट? तो किससे करेगा स्वैप, स्वैप किस किस को, ए, इसको बोलता हूँ ए स्टार्ट और ए पी को, और ये क्या इंक्रीज कर देगा, किस किस को आई इंक्रीज प्लस करेगा, प्लस ये एस को, या स्टार्ट को प्लस इंक्रीज, प्लस। और पी प्लस प्लस, राइट? ओके, ये आ गया आपका इफ वाला लूप। एल्स इफ क्या होगा आपका, अगर उस पॉइंट में उसको 0 मिल गया तो उसने ये कर दिया, अगर उसको लेट से उसको मिल गया आपका 1 मिल गया, 1 भी तो मिलेगा उसको, यस सर। अगर उसको 1 मिला तो क्या करेगा वो, तो उसको क्या करना चाहिए राहुल, अगर उसको 1 मिला है तो? एंड से स्वैप। एंड नहीं, वो तो 2 मिलेगा तो लास्ट में डालना है ना, 1 के लिए तो क्या करना है, 2 मिलेगा तो लास्ट में डालेगा, तो हम के लिए कुछ नहीं करेगा, राइट? क्योंकि उसको बीच, 1 तो उसको बीच में ही चाहिए ना, तो उसको क्या करेगा, सिर्फ पी को इंक्रीज कर देगा। अच्छा, तो इक्वल टू 1 होगा ना। हाँ सॉरी, दिस इज 1, ओके। अगर उसको 1 मिलेगा तो पी को सिर्फ प्लस प्लस कर देगा, राइट? कुछ नहीं करेगा। ये समझ में आ गया बनो? यस सर, यस सर। और एल्स में क्या करेगा, एल्स का मतलब क्या हो गया कि ए इज, मैं इसको एल्स में एल्स इफ डाल देता हूँ इसको, लेट से समझने के लिए, लेट्स एफ ए इज इक्वल टू 2, इस वाली कंडीशन में क्या करेगा, एंड से स्वैप। एंड से स्वैप करेगा, यानी क्या करेगा, स्वैप ए एंड को किससे, ए पॉइंटर से, ओके। और क्या 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 करेगा अब यहाँ पे, पी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और ई को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, राइट? ठीक है, यस सर। ये कोड काम कर जाएगा राहुल, ये इसमें आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है अभी? अब इसका अभी तो नहीं लग रही है, अब देखना पड़ेगा। अभी तो ठीक ऐसा है, लग रहा है कि सही कर तो आए। ओके, लेट्स हम एक कोड लिखते हैं छोटा सा, ठीक है? लेट्स से दिस इज 1, ड्राई रन करते हैं, 0, लेट्स से 2, लेट्स से 2 1 0, ओके, एंड लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज 1, ओके। अब यहाँ पे पॉइंट टेबल लिख देते हैं, दिस इज माई स्टार्ट, दिस इज माई पी एंड दिस इज माई एंड, ओके। स्टार्ट इज 0, पी इज 0, एंड इज
लेट्स से 0 1 2 3 4 3 4 5 6 7। ओके, ये मैंने पॉइंट टेस्ट लिख दिए। ओके, तो स्टार्टिंग में क्या करेगा, यहां से स्टार्ट करेगा, एस पी यहां से स्टार्ट करेंगे और ई आप यहां से स्टार्ट करेगा, राइट। तो फर्स्ट टाइम में क्या होगा, वो यहां से करेगा, इसको 1 मिला है तो 1 पे क्या करेगा, ये एस आपका यहीं कहीं रहेगा, पी को ये आपका सेकंड लूप में जाएगा, राइट। तो पी को इंक्रीज कर देगा, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, 7 का 7 ही रहा, कुछ नहीं हुआ, नथिंग, सिर्फ इंक्रीज किया, कुछ स्वैपिंग नहीं हुई। सेकंड अब आपका ये एस यहाँ पे था और पी आपका यहाँ पे अभी। ओके, अब आपका 0 आ गया तो इसमें जाएगा फर्स्ट वाली इफ में जाएगा, कंडीशन में स्वैप कर देगा ए और पी को, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0 यहाँ पर आ जाएगा और 1 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, और आपका अब एस कितना हो जाएगा, स्टार्ट आपका 1 पे कर रहा होगा पॉइंट, और पी आपका 2 पे पॉइंट कर रहा होगा, राइट, क्योंकि दोनों इंक्रीज हो गए, एस बी और पी बी, राइट। सो नाउ दिस इज योर एस एंड दिस इज योर पी, ये आपका 7 ही है अभी। अब उसको पी को 2 मिल गया। ओके, पी को जैसे 2 मिलेगा, ये क्या करेगा, पी को आगे कहां से बढ़ा देगा, करेगा, यहां से इंक्रीज करेगा। तो ये एंड से यहाँ स्वैप। आपका ऐसा कैसे ही रहा, पी आपका इंक्रीज हो गया कितना, 3 हो गया, ये आपका 6 हो गया, और इसने इसको स्वैप कर दिया। अब आपको यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 2 हो गया, राइट। इसने इसको, अब आपका पी इंक्रीज हो गया, कहां चले गया, 3, पी अब आपका यहाँ पे इंक्रीज कर हो गया। ये अब कहाँ पे पॉइंट कर रहा है आपका, एक एक्चुअली 0, एक मिनट हमने कुछ गड़बड़ की है क्या, 1 आ गया था, फिर 0 से 1 मेरा स्वैप हो गया, यहाँ पे आ गया। ओके, देन मेरा ये किसको पॉइंट कर था, 0 को था, फिर ये 1 को था, पी, अच्छा मेरा एस तो मेरा 1 पे था, राइट, मेरा 2 हो जाएगा, 0 1 2 मेरा, इसको ये 2 पे पॉइंट करेगा मेरा, ये मेरा स्टार्ट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, लेकिन मैं पी कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस पे। एक तो ना ये बहुत गड़बड़ करता है, इसको हम हटा देते हैं, कम ऑन, हम दोबारा से लिखते हैं। ओके, तो ये इस पॉइंट के बाद ये जैसे स्वैप कर दिया होगा, तो आपका एस कितना है, स्टार्ट करा 1 पे, 0 1 पे। ओके, ये आपका स्टार्ट है बेबी, और पी आपका कितना है, 0 1 2 3, ये आपका 3 पे पॉइंट कर रहा है पी, और एंड किससे पॉइंट कर रहा है आपका अभी, 6 पे, यानी कि यहाँ पे आपका ई है, राइट। ये हमारी पोजिशन है इस समय। लेकिन इसमें मेरी प्रॉब्लम क्या आएगी, अब लेट से पी को फिर से 2 मिल गया, फिर से इसको स्वैप कर देगा, तो नेक्स्ट टाइम ये तो आपका 1 का 1 ही रहेगा, पी आपका 4 हो जाएगा, या आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एस आपका यहीं पे चल रहा है। ओके, नाउ इट विल बिकम, pointer is pointing to this one. Okay, now it is 1 and it is 2. Okay, अब मेरे साथ, अब लेट से अब इसको 0 मिल गया। ओके, लेट से इसको अब यहाँ पे 1 मिल गया, तो 1 को क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, आगे आगे मूव ऑन कर जाएगा, तो ये आपका 1 रहेगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये भी आपका नहीं, ये 5 नहीं था, ये 7 6 2 3 4 5 6 7, राइट, 7 को 6 किया, 6 को 5 किया, हाँ ये 5 पे है, दोनों 5 5 हो गया, ये भी 5 ये भी 5 ये 1। ओके, अब इस केस में क्या होगा आपका, इस केस में अब आपका, अब जब वो आपका यहाँ पे आएगा, इस वाले के लिए बात कर रहे हैं, लास्ट एलिमेंट के लिए, 0 के लिए बात कर रहे हैं, जैसे पॉइंटर 0 पे आएगा आपका। अब प्रॉब्लम क्या होगी आपकी, 0 को उसको कहाँ मूव करना है, 0 आपका किससे, 0 को कहाँ मूव करना है, उसको यहाँ पे मूव करना है। ओके, सो अभी कंडीशंस मेरी, अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम आई एम हैविंग, स्टार्ट इसको और स्वैप कर देगा ये। इज नॉट लेस, हम्म, जो स्टार्ट और एंड मतलब सेम हो गया, 5 5 से, मतलब पी और एंड। पी और एंड, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है, मेरे साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब इसने क्या डाल दिया, इसने डाल दिया 0 1 1 1, ये सब डालता हुआ जा रहा है इसमें, ठीक है ना। तो अभी तक फिर अब मेरा 0 आ गया, 0 को क्या करेगा, 0 को फिर से स्वैप कर देगा यहाँ पे, फिर आपको पूरा कोड ठीक काम करेगा इस कंडीशन में। लेकिन ये प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, मेरी प्रॉब्लम वहां पे, इस कोड में बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। मैं एक छोटा सा कोड ले लेता हूँ, इस कोड में क्या कर रहा है, लेट से ये लास्ट में आपका 0 है, ओके, यहाँ पे आपका 1 है, लेट से 2 है, और ये आपका 1 और 0 है।
इस केस में क्या प्रॉब्लम आएगी अगर मैं इस वाले कोड पर रन करूं? इसमें तो बिल्कुल सही चल रहा है, कोड काम कर जाएगा। इस वाले कोड में प्रॉब्लम आएगी कुछ, इस वाले टेस्ट केसेस में 1 से 1 मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, शिफ्ट हो जाएंगे दोनों यहाँ पे। अब आपके आई और जे दोनों यहाँ पे, अब आपका जे यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, सॉरी पॉइंटर आपका यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, और आपका स्टार्ट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। फिर उसको क्या मिलेगा, 0 मिल गया, 0 और 1 को स्वैप कर देगा, ठीक है। अब आपका 0 यहाँ पे आ गया और 1 आपका यहाँ पे आ गया, ओके एलिमेंट। तो आपका स्टार्टअप कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, आपका स्टार्टअप एक्चुअली यहाँ पॉइंट ना करके आपका स्टार्ट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, और पी आपका यहाँ ना पॉइंट करके 2 पे पॉइंट कर रहा है, ओके। अब ये जब 2 पे पहुंच गया, इसको 2 मिल गया, तो 2 को किससे स्वैप करेगा, लास्ट के एलिमेंट से स्वैप कर देगा। तो अब आपका ये 0 आ गया, ये 2 आ गया, 0 2 आ गया, तो ये अब ये यहाँ पे था पॉइंटर, पहले इसको पॉइंटर को शिफ्ट करके भी यहाँ आ गया आपका। अब प्रॉब्लम क्या होगी, पॉइंटर आपका आगे निकल गया, जबकि 0 तो गलत है ना, 0 क्योंकि बीच में 1 आ गया है, और पॉइंटर आपका आगे बढ़ गया। क्योंकि प्रॉब्लम आपकी तब होगी जब एक्चुअली लेट से आपका लास्ट से जो शिफ्ट होकर आइटम आ रहा है वो लास्ट में 0 होकर अगर पहले आ रहा है, क्योंकि अगर आपका 1 शिफ्ट होकर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट से 1 शिफ्ट होकर बीच में आ रहा है। अगर लास्ट से आपका 0 शिफ्ट होकर आ रहा है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको आपको उसको भी देखना है कि लास्ट से कहीं 0 तो नहीं आ रहा है मेरे पास। अगर 0 आ गया तो आप उसको फिर से आपको उसका साइन करना है, उसको स्टार्टिंग में डालना पड़ेगा। समझ गए राहुल? यस सर। अगर आपका लास्ट से 1 स्वैप होकर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी पोजीशन बिल्कुल सेट होते जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर 0 आ रहा है तो फिर आपको ये वाला पॉइंटर आगे मूव नहीं करना है, क्योंकि आपको जो एलिमेंट स्वैप हो गया है उसको देखना पड़ेगा ये 0 तो नहीं है, क्योंकि 0 है तो मुझे उसको 1 से पहले डालना है। समझ गए राहुल? तो उस केस में यहाँ पे अगर ये इक्वल टू 2 आ रहा है, अगर स्वैपिंग हो रही है, तो उस केस में आपका p प्लस प्लस नहीं होगा, पॉइंटर को वहीं पे खड़ा रखेगा वो ये चेक करने के लिए कि जो स्वैप करके आइटम आया है कहीं वो 0 तो नहीं आया है, उसको फिर से चेक करेगा, उसके बाद आपका लूप आगे बढ़ेगा। तो आपका यहाँ तो आपके दोनों पॉइंटर इंक्रीज होंगे, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, यहाँ पे भी आपका सिर्फ एक डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि इंक्रीज करने से पहले वो चेक करेगा कि ये आइटम जो है 0 तो नहीं है, अगर 0 है तो उसको उठा के फिर से पहले डाल देगा। अंडरस्टैंड राहुल? तो सिर्फ इतना सा चेंजेस पूरे कोड में, अब आपका कोड रन कर जाएगा, इस वाले केस में आपका फेल नहीं होगा, अदरवाइज इस वाले केस में आपका फेल हो जाता है जब वो 0 को स्वैप करके लगा लास्ट से। तो उस केस में आपका ये काम करेगा, एलसिफ काम करेगा, और 2 वाले केस में क्या करेगा, स्वैप करेगा, लेकिन सिर्फ ई को इंक्रीज करेगा, पी को इंक्रीज नहीं, इसको डिक्रीज करेगा, पी को इंक्रीज नहीं करेगा। गॉट द पॉइंट राहुल? सो अभी देखो हमने प्रॉब्लम क्या की, हमने 2 वे पार्टीशनिंग की, और उसी को हमने उसी कोड को हमने उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक्सटेंड किया 3 वे पार्टीशनिंग करने के लिए, जहां पे हमने अब हमारे पास 0 थी, 1 थी और 2 थे। पहले हमने 2 पॉइंटर लिए थे, नाउ वी आर टेकिंग 3 पॉइंटर्स, और 3 पॉइंटर्स का यूज करके हमने किया कि उसको 3 वे पार्टीशनिंग कर दी, जहां पे आपके 0 1 एंड 2 आपके सेग्रीगेट हो गए। इस कोड में कोई प्रॉब्लम है राहुल? नो सर। तो इसमें आप देखोगे तो हमने इसका ड्राई रन करके देखा, एक ड्राई रन पे काम कर गया, दूसरे ड्राई रन पे हमारा एक कोड फेल हो रहा था, तो हमने क्या किया, ड्राई रन पे हमने क्या किया, अपने कोड को चेंज किया, जहां पे हमें प्रॉब्लम मिली हमने उसको रेक्टिफाई कर दी। तो ऐसा आपको हमेशा इंटरव्यू देखने को मिलेगा, जब भी आप कोड लिखोगे तो हो सकता है कि जो आपने पहले कोड लिखा वो ऑप्टिमाइज ना हो, देन इट विल आस्क फॉर ऑप्टिमाइजिंग द कोड। फिर आपने कोड लिखा, उसने कोई प्रॉब्लम अपने कोड में देखी, फिर वो देखेगा कि आपका कोड सही काम कर रहा है, क्या सारे टेस्ट केसेस पे काम करेगा। लेट से आपने टेस्ट केसेस रन किया और आपके हिसाब से सही काम कर रहा है, फिर आपको कहेगा कि लेट से आई एम गिविंग यू दिस टेस्ट केस, क्या इस टेस्ट पे काम करेगा? तो फिर आपको डायरेक्ट करके देखना कि यस सर इस पे तो फेल हो रहा है। आपका कोड अगर उस टेस्ट केस से फेल हो गया, देन यू शुड बी एबल टू फाइंड द प्रॉब्लम इन योर कोड एंड रेक्टिफाई इट। जैसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया ये प्रॉब्लम आ रही थी पी प्लस प्लस वाली, हमने इसको रेक्टिफाई कर लिया, ये आपने काम कर लिया, देन यू आर गुड। कभी भी इंटरव्यूअर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप फर्स्ट टाइम में एकदम परफेक्ट कोड लिख दो। ओके, अगर आप पहले टाइम में परफेक्ट कोड लिख दोगे इसका मतलब आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले से आता था। ओके, सो ही विल ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रोवाइज यू, कि आप अपने कोड को खुद से चेक करो, उसको धीरे धीरे हिंट को ग्रैप्स करके अपने कोड को ऑप्टिमाइज करते हुए रेक्टिफाई करते हुए चले जाओ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरव्यू। अगर आपका इंटरव्यू इस तरह से फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोड में आपके इंटरव्यू सही तरह से नहीं रन कर रहा है। हमेशा इंटरव्यू ऐसे ही रन करता है। ओके, अगर हम पहली बार रन कोड कर दो कहेगा आपको इसका मतलब प्रॉब्लम से आपको ये कोड आता था, ठीक है ना, वो आपको दूसरी प्रॉब्लम दे देगा। ओके, क्योंकि पहली बार में कभी अगर आपको प्रॉब्लम नहीं पता, पहली बार में कोड में कुछ ना कुछ गलती आप हमेशा करती हो, ठीक है ना, तो आपको खुद से ड्राई रन करना पड़ेगा, आपको खुद को कोड से रेक्टिफाई करना पड़ेगा, खुद से देखना पड़ेगा हम गलती करें, खुद से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा।
तो राहुल अप्रोच समझ में आ गई? यस सर। तो हमारे पूरे कोर्स में जब हम ये कोर्स अब रन करेंगे स्ट्रक्चर तरीके से, तो आपका कोर्स पूरा हम ऐसे ही हमारा रन होने वाला है। हम जब हम एरे डाटा स्ट्रक्चर पे काम करेंगे तो हम एरे की इजी प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। ओके, देन वी विल ट्राई कि इजी प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करना है, कैसे उसको ऑप्टिमाइज करना है, कैसे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इम्प्रूव करना है, कैसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को इम्प्रूव करना है, ठीक है। और कैसे अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो कैसे उसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देना है। एटलीस्ट आप सबसे अच्छा है कि आप उसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन दो, कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा, फिर आप यू आर गोइंग टू इम्प्रूव इट। Okay, and how you are going यस to catch the hint from the interviewer, how to you are going to debug your code, how you are going to dry run your code, and how you are finally giving the correct solution. Okay, यस सर। so by the next class we will start in the structured way। अभी हमने बहुत ही random problems उठाई हैं and we will just try to understand कि course किस तरह से चलेगा, किस तरह से हम problem statements करेंगे। Okay, so we have just take few very simple problems। Okay, so by next class we will start with the structured way and we will start the very first data structure that is called the array। Then we will gradually we will start with the easy problems and we go through the tougher problems, then we move to the next data structures, then with the next data structure, and the same way we start with the easy problems, then we gradually rise our bar and go to the tougher problems। Okay, and you will keep on learning the new techniques, okay, new ways to optimize your solution, new ways and new techniques, new tools, new algorithms। Okay, so this is done for today, Rahul। Okay, and next thing we will be covering the यस सर। next class। Okay,